اجرا ہے جو تقریباً 350 سال سے یہ عرس منایا جا رہا ہے، اس لیے اس بار ہم نے اس پوسٹر کا اجرا کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ درگاہ کا عرس 350 سال سے منایا جا رہا ہے۔ اس بنا پر ہم نے اس پوسٹر کا اجرا کیا ہے۔ اس تعلق سے بیداری بھی کی جائے گی، انشاءاللہ بیداری بھی کی جائے گی، جیسے واٹس ایپ میں اور یوٹیوب میں، فیس بک میں اسے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ مساجد میں اعلانات ہوں گے، پیپر کے ذریعے سے جناب جمشید بھائی کو بھی ہم نے آگاہ کیا ہے کہ اس عرس کے بارے میں پیپر میں بھی ڈالے، سالار میں، سہارا میں اور اسٹار آف میسور میں۔ آپ کے ذریعے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ہمارے عرس شریف میں چیف گیسٹ ہوں گے جناب الحاج تنویر سیٹھ صاحب، جناب حریث گوڑا صاحب اور جناب محمد رفیق استادی صاحب اور جناب عارف حسین صاحب، اور اس میں ہمارے میسور کے سرقاضی حضرت سید محمد عثمان شریف صاحب اور ہمارے بھائی سید احمد پیران صاحب اور ہمارے سید شاہ ہمارے سرور احمد صاحب اس میں خاص مہمان ہوں گے، اور دوسرے جتنے بھی احباب اس درگاہ کے لیے کام کاج کیے ہیں اور وہ سب اس عرس شریف میں شامل ہوں گے۔ اور تمام بڑے مکان والوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کارروائی میں ہماتن ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب ولی با بھی اس میں ساتھ ہوں گے، اور جتنے بھی احباب ہندوستان کے اندر ہمارے خاندان کے ہیں، جیسا کہ آرکاٹ میں ہی، ترچی میں ہی اور ویلور میں ہی، بنگلور میں ہی، ان سب کو یہ دعوت نامہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ خود آئے اور دوسروں کو بھی لے کر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام کارروائی میں تعاون کس کا ہے سر؟ تمام کارروائی میں ہمارے بڑے مکان والوں کا خاص تعاون ہے، اس میں محلے والوں کا، نوجوانوں کا، اور جتنے بھی احباب ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تمام کا اس میں تعاون ہے۔ اچھا سر، ماشاءاللہ۔ میسور میں ایک چھوٹی سی سرکل جو بڑا مکان کے بالکل سامنے ہے، اس کا نام حضرت ٹیپو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چھوٹی سرکل لکھی گئی، لیکن یاد ٹیپو کے طور پر عرس شریف کے موقع پر نہ وہاں پر لائٹنگس ہوتی، نہ کچھ کیا جاتا۔ کیا کمیٹی اس سلسلے میں کچھ خیال کر رہی ہے؟ بڑے مکان کا جب بھی عرس ہوتا ہے وہاں پہ لائٹنگ سجایا جاتا ہے، ہر 27 تاریخ کو نہیں انشاءاللہ ہمیں بھی انشاءاللہ اس دن کریں گے، ضرور کریں گے۔ اچھا ہوا آپ ہم نے یاد دلائیں، انشاءاللہ ضرور سے کریں گے۔ اور جتنے بھی ہمارے اس نیوز چینل سے آئے ہوئے ہیں، جناب قیصر صاحب، جناب ہمارے جمشید صاحب، اور بنگلور سے سالار سے جو بھی آئے ہوئے ہیں، اور کنگ حمید صاحب، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دے کر، وقت دے کر اس کارروائی میں شامل ہوئے۔ حضرت والا آپ کس طرح اپیل کریں گے عقیدت مندوں کو یہاں پر آنے کی؟ جی، اور یہاں کے میسور کے جتنے بھی عقیدت مند ہو یا باہر کے جتنے بنگلور کے ہیں، کرناٹکا کے ہیں، جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، جو محبان اہل بیت ہیں، جو محبان اولیاء کرام ہیں، ان سے عاجزانہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس نورانی عرفانی محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے، اور تینوں دن لنگر کا بھی انتظام رہے گا۔ آئیے آپ سب اس عرس میں شرکت فرمائے۔ جلوس کا آغاز حضرت سید شاہ محمد اشفاق پیران قادری سجادہ نشین کے گھر سے نکل کر ٹیپو سرکل ہوتے ہوئے جیلانی پیٹرول بینک سے سیدھا علاؤالدین شاہ کی درگاہ سے ہوتے ہوئے بڑے مکان کو پہنچے گا۔ اس میں فقراء کے ضربات ہوں گے، اور کیرلا والوں کا دف بھی ہوگا، اور نعتیہ کلام بھی ہوں گے، اور راتب بھی ہوگا، اور اس کریکٹ ٹھیک 7 بجے سے نکلے گا اور رات کے 10 بجے یہاں پر پہنچے گا، اور اس کے بعد فقراء کے ضربات سے ہوتے ہوئے سندول شریف 10:30 بجے مزار شریف پر چڑھے گا، اور اس میں مشائخین بھی رہیں گے اور یہاں کے سجادہ نشین بھی رہیں گے۔ سر، سیرت اولیاء پر خطابت ہوگی؟ یہ خطابت انشاءاللہ تھوڑا سا بیان ہم مدرسے کے اندر رکھ دیے ہیں۔ جی، تو خواتین کے لیے کچھ؟ خواتین کے لیے پردے کا انتظام رہے گا، خاص پردے کا انتظام رہے گا۔ رحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मशाइख़ीन वज़ाम, सज्जादा गाने ज़बील एहतराम, शहर बेंगलुर और मैसूर से अलग अलग मुख्तलिफ़ मकामात से, मंगलूर से भी मुख्तलिफ़ मकामात से यहाँ पर 425 साल ख़दीम बुज़ुर्ग, उनकी हयात भी ले ली जाए, 350वां उर्स हो रहा है। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद उमर पीर महज़ार अली शाह शुत्तारी क़ादरी, हज़रत पीर दस्तगीर 4 बरस के पीर रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत सैयद शाह मोहम्मद उमर महज़ार अली शाह शुत्तारी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया ज़ौजे मोहतरमा हज़रता सैयदानी बीबी सैयदा रहमान बीबी साहिबा रहमतुल्लाहि अलैहा और सैयद शाह मोहम्मद उमर महज़ार अली शाह शुत्तारी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद हज़रत सैयद क़ासिम शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साक़ी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन मुक़द्दस औलिया कराम, इन बुज़ुर्गान दीन का 350वां जश्न संदल और उर्स शरीफ बड़े ही अज़ीमुश्शान पैमाने पर तुज़क़ व एहतशाम के साथ जो है मुनाक़िद किया जा रहा है। बज़ेर सदारत सज्जादा नशीन साहिब क़िबला हज़रतुल अल्लामा सैयद शाह अल्ताफ़ पीरान साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी और नायब सज्जादा नशीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शाह मोहम्मद गौस पीरान साहिब क़ादरी शुत्तारी दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया, इन मुक़द्दस सादात इकराम शहज़ादा गाने अहले बैत की सदारत में, सरपरस्ती में ये 350 साला जश्न संदल उर्स शरीफ बतारीख़ बरोज़ हफ्ता 31 मई 2025 बरोज़ इतवार 1 जून 2025 यानी कि 31 मई बरोज़ हफ्ता जश्न संदल उर्स शरीफ और महफिल समा खानी 1 जून 2025 को मुनाक़िद, यानी हफ्ता और इतवार आने वाली हफ्ते और इतवार को ये जश्न संदल उर्स शरीफ की अज़ीमुश्शान तक़रीब मुनाक़िद है। ये बुज़ुर्गान दीन, ये औलिया अल्लाह मुक़द्दस सरकार सैयदना इमाम हसनैन करीमैन आले नबी औलाद अली नूर चश्म फ़ातिमा शहज़ादा गाने गौसुल वरा, ये मैसूर की सरज़मीन पर तकरीबन 425 साल पहले यहाँ पर जो है क़ियाम पज़ीर हुए, यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत ये बड़ा मकान जो है मैसूर के अंदर जो है सदर मकाम का मकाम रखता है, मरकज़ियत का मकाम रखता है, औलिया अल्लाह का मरकज़ है ये, क्योंकि सबसे बड़े औलिया अल्लाह शहर मैसूर के अंदर यहाँ तशरीफ़ लाने वाले आले नबी औलाद अली शहज़ादे गौसुल वरा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सैयदना सैयद शाह पीर महज़ार अली शुत्तारी, पीर महज़ार अली शाह शुत्तारी क़ादरी पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत मशहूर व मारूफ़ और तारीख़ी ये दरगाह शरीफ यहाँ पर जो वाक़ है। इस दरगाह शरीफ में आराम फरमाए बुज़ुर्गान दीन जो अपने नाना जान अपने जद सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन मतीन की तबलीग़ के लिए, इस्लाम की तशहीर के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए बीजापुर से, यहाँ बीजापुर की आरकाट दरगाह है बीजापुर में, मैं भी वहाँ पर गया था कि बीजापुर की जामिया मस्जिद के बिल्कुल बाजू में हज़रत सैयद शाह अब्दुर्रहमान काज़िमी शुत्तारी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ पर आराम फरमा, बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनके सगे भाई हैं ये हज़रत सैयद शाह मोहम्मद उमर पीर महज़ार अली शाह शुत्तारी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। तो वहाँ से जो है आपके फ़ुयूज़ व फतूहात को लेकर, गौस व ख्वाजा के फ़ुयूज़ व फतूहात को लेकर इमाम हसनैन करीमैन अपने जद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ुयूज़ व फतूहात को लेकर, फ़ुयूज़ व बरक़ात को लेकर इस रूए ज़मीन में आए और यहाँ पर जो है तमाम बंदगान खुदा के ख़ुलूब को मुनव्वर किया, दीन अल इस्लाम की रोशनी से तमाम के ख़ुलूब को जो है मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दिया। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बरसहा बरस से इन बुज़ुर्गान दीन और इनकी औलादों ने सिलसिलावार यहाँ पर दर्स व तदरीस, कुरान शरीफ
अहादीस मुबारका यहाँ पर जो है इल्म दीन को सीखने सिखाने का एक मरकज़ क़ायम किया है। ये औलिया अल्लाह का भी मरकज़ है। ये दरगाह शरीफ के बिल्कुल मुकाबिल में करबला की एक बावली है जो हर साल मुहर्रम में तमामी मैसूर के हज़रात को तमाम बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो है ये करबला की बावली भी कितना तारीख़ी मकाम रखती है कि जहाँ पर जो है तमाम अलमदार यहाँ पर जो है खुलूस से तशरीफ़ लाते हैं। तो बहरे कैफ इन मुक़द्दस बुज़ुर्गान दीन की दीनी खिदमात और अपने नाना जान सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन मतीन की तबलीग व तशहीर के लिए जो क़ुरबानियाँ पेश किए, जो आपके कश्फ़ो कमालात हैं, करामात हैं, आज भी जो है उसका जो है वो करामतों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मशहूर व मारूफ़ है कि जिस किसी को भी औलाद नहीं रहती, बे औलाद यहाँ पर आकर मन्नत व मुराद करते हैं, हज़रत सरकार की क़िबला में बारगाह में दुआ करते हैं, तो वो साहिब औलाद अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमाकर उनको साहिब औलाद बना देता है। इसी तरह से सरकश जिन्नात, शयातीन, बला, भूत, परेत, जादू, सिहिर, ऐसे तमाम चीज़ें यहाँ पर इन बुज़ुर्गान दीन के करामत से, इनकी बरकत से पामाल हो जाते हैं और शिफायाबी मिलती, हर बीमारी की शिफायाबी इस आस्ताने आलिया से मिलती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कुरान करीम में कि तंज़िलुम बरकात मिन ज़िक्रि सालिहीन, जहाँ पर मेरे सालिहीन का ज़िक्र होता है मैं बज़रिए फ़रिश्ते और मलाइका के वहाँ पर खैर व बरकत नाजिल फरमाता हूँ। तो ये वली अल्लाह का दरबार है जो सालिहीन से ऊंचा मकाम रखते हैं, आला दर्जा रखते हैं। जहाँ पर अल्लाह के वली खुद हो तो वहाँ पर अल्लाह की रहमत है। हर वली के नाम के साथ रहमतुल्लाहि अलैह लगा हुआ है, अल्लाह की आगोश रहमत में ही। तो बहरे कैफ हमें जो है इन रहमत वालों, इन निस्बत वालों और आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उर्स पाक में कसीर से कसीर तादाद में शिरकत करना है। रियासत कर्नाटक भर के, पूरे हिंदुस्तान भर के, वो तमिलनाडु हो, शुतारिया खादरिया घराने के खानवादे के लोग हो, सैलम में ही, तमिलनाडु में ही, और अल्लाह सलामत रखे हमारे शहर बेंगलुरु के लालबाग के बड़ा मकान में वाक़े खुतबुल अख्ताब सैयदना अताउल्लाह शाह शुतारी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी बुज़ुर्ग के ख़ानदान से वाबिस्ता हैं, ख़ानदानी रिश्ता है उनसे भी। अल्लाह ताला का फजल एहसान है कि जो है ये मुक़द्दस बुज़ुर्ग दीन के संदल उर्स शरीफ में क्या तमिलनाडु, क्या रियासत कर्नाटक, क्या आंध्र प्रदेश, क्या हिंदुस्तान के आशिक़ान औलिया तमाम को ये दावत दी जा रही है कि वो कसीर तादाद में बरादरान मिल्लत, दुख्तरान इस्लाम, आशिक़ान औलिया, आशिक़ान अहले बैत रसूलुल्लाह इस 350वें संदल उर्स शरीफ की कार्रवाई में कसीर तादाद में उमड़ते हुए सैलाब की तरह शिरकत फरमा कर फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करें, फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करें। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आओ ज़ियारत को अहले ईमान, कि आओ ज़ियारत को अहले ईमान के हुस्ने परवरदिगार देखो, घर देखना हो ज़मीन पे जन्नत, औलिया का मज़ार देखो, औलिया को है सकत अल्लाह से, तीर को फेरे ही आधी राह से, तीर को फेरे ही आधी राह से। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ही ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, सरकार दो आलम की उल्फत में जो मरते ही अल्लाह के वो बंदे जिंदा ही मज़ारों में। औलिया को है सकत अल्लाह से, तीर को फेरे ही आधी राह से। जब तक ना लोगे वास्ता औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना खुदा की राह का। उल्फत आले नबी सबसे बड़ी दौलत है, हक़ को पहचानो मुसलमानों अभी मोहलत है, जिसमें शामिल हो लबो लहजे कुरान मुबीन, असल में फ़ातिमा ज़हरा की वही मिद्दत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्ग और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, शहर मैसूर में इसी महीने के 30 तारीख़ और 30 पर 1 तारीख़ को और जो है जून 1 तारीख़ यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार
औलाद अली शहज़ाद गौस आज़म हज़रत सैयद शाह मोहम्मद उम्र महसार क़ादरी शितारी रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत सैयद शाह मोहम्मद दस्तगीर अलमारूफ 4 बरस के पीर रहमतुल्लाह अलैह का संदौल उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। 3 दिन भी जो है बाद नमाज इशा ज़ियाफ़त आम का इंतज़ाम रहेगा। जुम्मा के दिन जो है नूरानी संदल होगा और 11वीं शरीफ भी होगी। हफ्ते के दिन जो है आम संदल होगा। इतवार के दिन बरोज़ इतवार 1 जून को महफिल क़वाली होगी और इसके अंदर जो है मैसूर, बेंगलोर और अतराफ़ के जो है शहरों से जो है उलमाए कराम, मशाइख़ वज़ाम और आशिक़ान औलिया इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। और मैं सारे सिलसिले वालों से मुर्शद हो या उनके मुरीदीन हो या औलिया अल्लाह के चाहने वाले अक़ीदतमंदों से गुजारिश करता हूँ इस कार खैर में शामिल हों। बुज़ुर्गों के आस्ताने पर जो है एक अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। आज के इस दौर फितने के दौर में जो है हम अल्लाह वालों के पास आकर उनसे जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो जो है वो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करेगा। और इसके अंदर जो है आने वाले जो है अदब का ख्याल रखें और इस इत्तला को दूसरों तक पहुंचाएं। और मैं जो है इस दरबार के सज्जादे हज़रत सैयद शाह मोहम्मद इश्तियाक़ पीरान क़ादरी साहब और सैयद शाह मोहम्मद अल्ताफ़ पीरान क़ादरी साहब और हमारे सैयद गौस पीरान शाह क़ादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम जो है मैसूर हो या बेंगलुरु हो या मंगलूर से तक भी जो है सिलसिले वालों को जो है बुलाकर इस कार खैर में जो है हाज़िर होने की दावत दी। तमाम मशाइखीन और सादात इकराम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर बड़े मकान की दरगाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाज़िर हुए। और जनाब हमारे बेंगलुरु से आए हुए मेहमान जनाब वलीबा हज़रत सैयद शाह मोहम्मद वलीबा हज़रत अज़ीम अली चिश्ती साहब और हमारे नूरुल्लाह साहब, रूहुल्लाह साहब, अहमद बाशा साहब और हमारे ख्वाजा अमीन अली साहब और जितने भी आए हुए मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आप हमारी इस मोहल्ले वालों की बात सुनकर इस कीमती वक्त निकाल कर बड़े मकान को तशरीफ़ लाए। और हमारे सामने बहुत ही मारूफ हस्तियाँ बैठे हुए हैं जो बेंगलुरु के सज्जादे भी हैं और मैसूर के सज्जादे भी हैं। और हमारे मुक़बिल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के वहाँ के भी एक साहिब सज्जादा तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे सरवर जो बहुत ही मारूफ हस्ती हैं और उनके भी फ़र्जंद बैठे हुए हैं। इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहते हुए बड़े मकान को तशरीफ़ लाए।